Hello students, so let us continue with our lesson human health and diseases. So in human health and diseases, what we have studied yesterday? याद करो? Yes, we have studied about the types of T lymphocytes. T cells or T lymphocytes can be sensitized directly by antigen, and on sensitization they divide to form their clones. T cells divide होकर अपने clones बनाते हैं. The clones were having same structure but different function. तो 4 टाइप के clones हमने कल पढ़े थे and they were helper T cells, killer T cells, suppressor T cells and memory T cell. Okay, helper T cell, as the name suggests, it activates other T cell or B lymphocyte or macrophages by secreting lymphokines. Killer T cell, it can directly kill the pathogen infected cell or cancer cell by secreting perforin. Suppressor T cell suppress your entire immunity to act on your own body cell. Memory T cell retain the memory of antigen. Okay, so yesterday we have completed about the cells of immune system. Now we have to study today about the structure of antibody. Right from the first day of this lesson, इस लेसन के पहले दिन से ही हमने ये बहुत बार सुना है, बहुत बार हम ये पढ़ते आ रहे हैं, एंटीबॉडी एंटीबॉडी एंटीबॉडी, लगभग रोज ही हम ये पढ़ रहे हैं, ये नाम जरूर आ रहा है एक ना एक बार तो भी रोज के लेक्चर में एंटीबॉडी. सो व्हाट दिस एंटीबॉडी एग्जैक्टली इज दैट आई हैव एक्सप्लेन्ड यू बिफोर. एंटीबॉडी क्या है? सो आपको बताया था कि इट इज अ काइंड ऑफ अ प्रोटीन which is secreted by our body cells. Now you know better that the B lymphocyte produces antibody. So how the B lymphocytes produces antibody? So आप याद करो B lymphocytes जो रहेंगे on sensitization they divide, they form 2 type of the cells. Which are those 2 type of the cells? Plasma cells and memory B cells. Yes. In that the plasma cells produces antibodies. And do you know the rate of production of antibody? So one plasma cell can produce, listen, one plasma cell can produce 2000 antibodies per second. Yes, per second, एक सेकेंड में प्लाज्मा सेल्स 2000 एंटीबॉडीज को तैयार कर सकते हैं. तो एक सेकंड में प्लाज्मा सेल्स 2000 एंटीबॉडीज तैयार कर सकते हैं. यू कैन इमेजिन हाउ द रेट ऑफ प्रोडक्शन इज वेरी हाई. इट इज वेरी फास्ट. सी, सो एंटीबॉडी का आज हमें पढ़ना है स्ट्रक्चर. हाउ इट इज दैट वी हैव सी हाउ इट वर्क्स दैट वी हैव स्टडीड बिफोर, एंड टुडे वी हैव टू स्टडी द एग्जैक्ट स्ट्रक्चर ऑफ एंटीबॉडी. केमिकली, स्ट्रक्चरली, द एंटीबॉडीज आर glycoproteinaceous in nature. So structurally antibodies are nothing but what? Glycoproteins. Yes, structurally antibodies are glycoproteins and they are also known as the immunoglobulins. ये भी आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया है. एंटीबॉडीज आर ऑल्सो नोन एज द immunoglobulins, Igs. Chemically they are glycoproteins and also known as the immunoglobulins, or more popularly we called it as the antibody. Glycoprotein means it is having polypeptide chain. Protein का मतलब क्या रहता है? See, protein is the chain of amino acid. आप किसी भी प्रोटीन की बात कीजिए, प्रोटीन का मतलब रहता है chain of amino acid, and the chain of amino acid is known as the polypeptide chain. I think you have learned this in your 11th standard in the lesson biomolecules. So biomolecule lesson में आपने प्रोटीन का स्ट्रक्चर पढ़ा है, तब आपने ये जरूर पढ़ा होगा, आपको याद आ रहा होगा कि प्रोटीन का मतलब रहता है चेन ऑफ अमाइनो एसिड. याद है? पढ़ा है हमने? यस. सो प्रोटीन का मतलब रहता है चेन ऑफ अमाइनो एसिड and the chain of amino acid is called as the polypeptide chain. Okay.
So in that way, the antibody is made up of 4 polypeptide chain. 4 polypeptide chain. See, one. Yes, this is a small chain which is known as the light chain. So these two. This is second. These two are the light chain. And 3 and 4. So in the middle, these two are the heavy chain. So antibody is made up of 4 polypeptide chain. 2 chains are heavy chain which are present in the middle, these ones, and 2 chains are the light chains which are present here. So these two are light chain and in the middle these two are heavy chain. समझ में आया? As the antibody is made up of 4 polypeptide chain. Polypeptide chain is the chain of amino acid, and you know that the amino acid has 2 ends. Polypeptide chain of amino acid has 2 ends. You have studied it before in 11th standard. Okay, आपको पढ़ाया है कि अमाइनो एसिड की चेन, पॉलीपेप्टाइड चेन को 2 एंड होते हैं. One end is called as the C terminus, where carboxylic group is there, and another end is called as the N terminus, where amino group is there. जहाँ पे NH2 ग्रुप होता है उस एंड को हम N एंड बोलते हैं, N टर्मिनस बोलते हैं. एंड जहाँ पर कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है उस एंड को हम बोलते हैं सी टर्मिनस. सो चारों भी जो पॉलीपेप्टाइड चेन्स आप यहाँ पे देख रहे हो, 2 heavy and 2 light, all the 4 chains are having C end as well as the N end. Okay, clear? Now each of the 4 chain has one variable region and one कांस्टेंट रीजन. समझ में आ रहा है? ये जो 4 चेन्स आपको यहाँ पर दिखाई दे रही है, 4 पॉलीपेप्टाइड चेन, चारों में से हर एक पॉलीपेप्टाइड चेन का जो आधा वाला पार्ट है उसे हम नाम देते हैं वेरिएबल रीजन. वेरिएबल का मतलब इट कैन चेंज इट्स स्ट्रक्चर, एंड जो आधा वाला पार्ट होता है दैट इज कॉल्ड एज द कांस्टेंट रीजन. समझ में आ रहा है? We are studying that antibody is made up of 4 polypeptide chain, 2 heavy, 2 light. Each of the chain has N terminus, C terminus. Now each of the 4 chain has half variable and other half is the constant region. See in the leveling, जैसे अगर हम लेते हैं ये लाइट चेन. सो लाइट चेन में आपको जो डॉटेड वाला पोर्शन दिखाई दे रहा है आपको यहाँ पर, दिस पोर्शन इज वेरिएबल रीजन. इन द सेम वे हेवी चेन पर देखिए आप, इन हेवी चेन द रीजन विच इज डॉटेड इज कांस्टेंट बट विच इज प्लेन इज नोन एज द वेरिएबल रीजन. सो दीज 2 आर द वेरिएबल रीजन, एंड यहाँ पर जो डॉटेड है और यहाँ पर जो आपको प्लेन दिखाई दे रहा है, दीज 2 रीजन आर द कांस्टेंट रीजन. अगेन दिस इज वेरिएबल रीजन ऑफ हेवी चेन, this is constant region of heavy chain, this is variable region of light chain, and it is variable region of constant region of light chain. समझ में आया? So these 2 upper regions are the variable regions of light chain and heavy chain respectively, and these 2 are the constant region. Constant means they will not change in any case. So these 2 are the constant regions of light chain and heavy chain respectively. Okay, got it? So all the 4 chains, antibody 4 polypeptide chain से बनी है. Polypeptide means amino acid chain. It has 2 terminus. One is C terminus, another is N terminus. C मतलब वहाँ पे कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, N मतलब वहाँ पर अमाइनो ग्रुप है. चारों भी जो चेन्स है उसमें से 2 चेन हेवी और बाहर की 2 चेन लाइट, ऐसा हम बोलते हैं. लाइट हो या हेवी हो, दोनों चेन में 2 अलग अलग रीजन रहते हैं. ओके, हाफ इज द वेरिएबल रीजन. वेरिएबल मीन्स इट कैन चेंज. हाउ इट चेंज, कैसे वो चेंज होता है आगे हम पढ़ेंगे. एंड हाफ इज द कांस्टेंट रीजन. कांस्टेंट मीन्स इट विल नेवर एवर चेंजेस. सो दीज 4 पॉलीपेप्टाइड चेन्स आर connected to each other by means of disulfide bond. ये जो हमारी 4 पॉलीपेप्टाइड चेन है
ये एक दूसरे से कनेक्टेड है इस डाइसल्फाइड बॉन्ड के थ्रू। डाइसल्फाइड, डाइसल्फाइड मीन्स हैविंग 2 सल्फर। Okay, so this is the disulfide bond. So all the 4 chains are connected together with the help of disulfide bond and they form which shape of the structure? कौन सा वाला शेप देख रहे हो आप यहाँ पर? Yes, Y-shaped structure. So these 4 chains they togetherly form the Y-shaped antibody. So in normal, in general, the structure of antibody is Y-shaped. अब मैंने तो आपको इसके पहले पढ़ाया है कि भाई एंटीबॉडी बहुत ही स्पेसिफिक होती है। अलग अलग एंटीजन के लिए हमारी बॉडी अलग अलग एंटीबॉडीज बनाती है। पोलियो वाली एंटीबॉडी जो रहेगी वो चिकन पॉक्स के वायरस को नहीं मार सकती। ये एक तो आपको वैसा पढ़ाया और यहाँ पे पढ़ा रहा है कि सिंपल एंटीबॉडी इज वाई शेप स्ट्रक्चर। सो हाउ वन एंटीबॉडी विल किल डिफरेंट टाइप ऑफ द मॉलिक्यूल्स, दैट क्वेश्चन शुड बी इन योर माइंड। आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आना चाहिए कि एक बार तो मैम ने ऐसा बोला है कि अलग अलग पैथोजन के लिए एंटीबॉडीज अलग अलग टाइप की बनती है। एक एंटीबॉडी सिर्फ एक ही टाइप के पैथोजन को मारती है, वो दूसरे पैथोजन को नहीं मार सकती। और अभी यहाँ पे बोल रहे हैं कि एंटीबॉडी का स्ट्रक्चर जो है वो वाई शेप का रहता है। सो व्हाट इज इट? ओके, लेट मी एक्सप्लेन यू। देखो, एंटीबॉडी का जनरलाइज्ड स्ट्रक्चर रहता है वाई शेप का, बट अभी आपको थोड़ी देर पहले यहाँ पे पढ़ाया कि 2 अलग अलग रीजन है, वेरिएबल रीजन एंड कांस्टेंट रीजन। ओके, वेरिएबल रीजन जो है वो चेंज होता है। जैसे जैसे एंटीजन का स्ट्रक्चर चेंज होगा वैसे वैसे वेरिएबल रीजन चेंज होता है। कैसे? तो अभी आपको यहाँ पर बताते हैं। उसके पहले आपको एक टर्म बता देते हैं, 2 टर्म बची वो पहले हम पढ़ लेते हैं, बाद में हम वेरिएबल रीजन के बारे में पढ़ते हैं। सी सो दीज 2 अपर, 2 नहीं बोलेंगे हम, 4 आपको दिखाई दे रहे हैं। सो दीज 4 अपर चेन्स आर कॉल्ड एज दी आर्म्स। ये जो अपर 4 चेन आपको दिखाई दे रही है, दीज 4 आर नोन एज दी आर्म्स एंड दीज 2 at the bottom are known as the stem. So these are arms of antibody and this is the chain of antibody. Arms and chain are connected to each other with the help of hinges. ये जो point है connection का, this point of connection between arms and stem, upper are arms and lower is the stem. तो arm and stem के connecting point को क्या बोलेंगे? Again repeat करो एक बार, hinge. क्या बोलेंगे? hinge. Yes. ओके, नाउ अब अगर आप एंटीबॉडी में देखोगे तो यहाँ पर जो वेरिएबल रीजन है, वेरिएबल रीजन में कुछ आपको ऐसे यहाँ पर एक स्ट्रक्चर्स दिखाई दे रहे हैं डीप वाले, खाचे खाचे दिसत आहे, आपण त्याला मराठीत म्हणू असं दिसत आहे ना, इथे खाचे खाचे बनलेले दिसत आहे। ओके, कुछ गड्ढे आपको दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर। सो दीज आर दी एंटीजन बाइंडिंग साइट्स। यहाँ पर एंटीजन आकर के बाइंड होता है, एंटीजन जो है वो वहां पर फंस जाता है, उसको एंटीजन बाइंडिंग साइट बोलते हैं। आप तो जानते ही हैं कि एंटीबॉडी एंटीजन को 3 स्टेप में मारती है। पहली स्टेप है अग्लूटिनेशन, दूसरा याद करो ऑप्सोनाइजेशन एंड तीसरा यस न्यूट्रलाइजेशन। तो पहली स्टेप में एंटीबॉडी एंटीजन को पकड़ लेती है, पकड़ती है ना, एंटीजन को पकड़ना मतलब उसको फंसा देना, उसका अग्लूटिनेशन करना। तो एंटीजन कहाँ पर आकर फंस जाता है? यहाँ पे इन साइट्स में। आप अभी खाचे खाचे नहीं बोलेंगे उसे। ओके, सो दीज साइट्स आर नोन एज द एंटीजन बाइंडिंग साइट और पैराटोप। नाउ यू विल कॉल्ड इट एज पैराटोप। तो दोनों साइड में आपको वेरिएबल रीजन दिखाई दे रहा है, ऑन द बोथ साइड ऑफ एंटीबॉडी, ऑन बोथ द आर्म्स ऑफ एंटीबॉडी। दोनों आर्म पे आपको वेरिएबल रीजन दिखाई दे रहे हैं और दोनों भी वेरिएबल रीजन में ये साइट्स हैं। दीज साइट्स आर कॉल्ड एंटीजन बाइंडिंग साइट और पैराटोप। यहाँ पर एंटीजन आकर फंसता है तो इसे एंटीजन बाइंडिंग साइट्स बोल सकते हैं आप, और इट इज नोन एज व्हाट? पैराटोप। अंडरस्टूड? सो लेट अस रिवाइज अगेन व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ एंटीबॉडी। सो एंटीबॉडीज आर जनरली ग्लाइकोप्रोटीन्स, also known as the immunoglobulins or Igs. As it is a protein, it is made up of polypeptide chain. How many polypeptide chains are there in antibody? Yes,
4 polypeptide chains are there. Each polypeptide chain has one terminus called as the C terminus, where carboxylic group is there. Another end is called as the N terminus, where amino group is there. Okay. From the 4 polypeptide chain, the 2 chains are heavy chains which are present in the center, and the 2 which are present at the periphery are known as the light chain. So blue वाली 2 light है और black वाली 2 chains जो है they are the heavy chain. In each of the 4 chain, चारों chain में से हर एक chain में half जो region है वो है variable region. It can change according to the shape of antigen. एंटीजन के शेप के हिसाब से ये रीजन अपने आप को चेंज कर सकता है. हाउ दैट वी आर नाउ गोइंग टू स्टडी. सो हाफ इज द वेरिएबल रीजन एंड हाफ रीजन इज कॉल्ड एज द कांस्टेंट रीजन. ओके, सो दिस इज वेरिएबल रीजन ऑफ लाइट चेन, दिस इज वेरिएबल रीजन ऑफ हेवी चेन, एंड दिस इज कांस्टेंट रीजन ऑफ लाइट चेन, एंड दिस इज कांस्टेंट रीजन ऑफ हेवी चेन. नाउ the upper four are called as the arms and lower 2 are known as the stem. Arms and stems are connected at point known as the hinges. This connecting point is known as the hinges. Okay, all the 4 polypeptide chains are connected together with the help of which bond? कौन सा bond है? Disulfide bond. Okay, and they form which shape of the structure? Y shape of the structure. Okay, so how antigen forms a complex with antibody, or how antibody forms the complex with antigen. तो आपको बताया कि एंटीबॉडीज पर 1 पॉइंट. सो एंटीबॉडीज पर ये एंटीजन बाइंडिंग साइट है जहां पे एंटीजन आके फंस जाता है. उस साइड को हमने बोला है पैराटोप. वन एंटीबॉडी इज हैविंग 2 पैराटोप. सी, वन एंटीबॉडी is having 2 paratope, 1 and 2. That's why antibodies are bivalent in nature. Most of the time antibodies are bivalent in nature. Why they are bivalent? Because one antibody has 2 paratope. एक एंटीबॉडी को 2 पैराटोप है, एक एंटीबॉडी को 2 पैराटोप है जहां पर कि एंटीजन आके फंस जाता है. 2 एंटीजन बाइंडिंग साइट्स हैं, इसीलिए हम इस एंटीबॉडी को नाम देते हैं बाइवैलेंट एंटीबॉडी. ओके, सी नाउ दिस इज द एंटीजन. आपको बताया था मैंने कि एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स दे एनगल्फ प्रोसेस एंड प्रेजेंट द एंटीजन. सो आप समझो कि ये एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल है और उसने एंटीजन को इस तरीके से रिसेप्टर के फॉर्म में प्रेजेंट किया है. And I already told you that antibody will be produced for these receptors. ये आपको बताया है कि एंटीबॉडी किस लिए तैयार होती है. तो एंटीबॉडी जो है ये इन रिसेप्टर्स के लिए तैयार होती है. किस लिए तैयार होती है एंटीबॉडी? एंटीबॉडी इज प्रोड्यूस्ड फॉर दीज रिसेप्टर. ये रिसेप्टर के लिए एंटीबॉडी तैयार होती है. ओके, तो जब एंटीबॉडी तैयार हो रही है उस वक्त में जिस टाइप का रिसेप्टर का शेप है, जैसे यहाँ पे देखो स्क्वायर है, सर्कल है, ट्रायंगल है. सो जिस टाइप का रिसेप्टर का शेप रहता है उस टाइप का ये पैराटोप जो है वो मॉडिफाई किया जाता है. समझ में आया? जिस टाइप का शेप रिसेप्टर का है उसी टाइप से ये जो पैराटोप है एंटीजन बाइंडिंग साइट, इसे मॉडिफाई किया जाता है. जैसे कि, और हाँ अभी तक हम इसे रिसेप्टर बोल रहे हैं, but now you can call it as epitope. इन रिसेप्टर्स को आप क्या बोल सकते हो? epitope and paratope. They form a complex एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स या फिर epitope paratope कॉम्प्लेक्स. एंटीजन का क्या? epitope. एंटीबॉडी का क्या? पैराटोप. epitope paratope कॉम्प्लेक्स आप ऐसा भी इसको बोल सकते हो. जब भी एंटीजन और एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, when we study that complex, that means we are studying serology. Serology is the study of antigen antibody complex. अगर हम एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स की स्टडी करते हैं, that means we are studying the serology. Okay, see. So यहाँ पे आप देखिए ये Y शेप का एंटीबॉडी है जो हमने इन्वर्टेड ड्रॉ किया है. सो इन्वर्टेड Y शेप आप देख रहे हो यहाँ पर.
बायोवैलेंट एंटीबॉडी होती है, हमने अभी भी पढ़ा कि एक एंटीबॉडी को 2 पैराटोप है। सो ये एक पैराटोप हो गया यहाँ पे इसका, और ये दूसरा पैराटोप हो गया। ओके, तो एज दी इपिटोप इज सर्कुलर इन अ शेप, ये इपिटोप आपको यहाँ पे ऐसे डोम शेप का या सर्कल शेप का दिखाई दे रहा है। तो वेरिएबल रीजन जो है ये वाला हमारा पैराटोप वाला वेरिएबल रीजन वो मॉडिफाई हो जाएगा कौन से शेप में, सर्कल शेप में। ओके, यहाँ पे देखो आपको ट्रायंगुलर शेप का दिखाई दे रहा है इपिटोप। एज द इपिटोप इज ट्रायंगुलर इन द शेप, आवर एंटीबॉडी इज मॉडिफाइड टू दैट ट्रायंगुलर शेप। समझ में आया? जैसे जैसे इपिटोप का स्ट्रक्चर चेंज होते जाएगा वैसे वैसे एंटीबॉडी अपने पैराटोप का स्ट्रक्चर भी चेंज करती है। समझ में आया? इपिटोप का स्ट्रक्चर चेंज हो रहा है तो एंटीबॉडी अपने पैराटोप का स्ट्रक्चर भी चेंज कर देती है। और यहाँ पे देखो एंटीबॉडी ने यहाँ पे जो सर्कुलर शेप था वही वेरिएबल रीजन ने अभी क्या कर लिया है, ट्रायंगुलर शेप। सो इट इज लाइक अ लॉक एंड की मैनर, जैसे एक ताला और उसकी चाबी ऐसे स्पेसिफिक रहते हैं। ओके, एक ताले की एक ही चाबी होती है। आई मिस एक्चुअली क्लासेस ना, मतलब मुझे अभी याद आया कि हर साल जब भी ऐसा बोलती हूँ कि एक ताले की एक ही चाबी होती है, तब सामने बैठे बच्चों में से स्पेशली बॉयज, एक दो बॉयज तो जरूर बोलते हैं कि नहीं नहीं मैडम 2-3 चाबियां होती हैं। सो आई एक्चुअली मिस इट, बट इट्स ओके। देखते हैं अभी कब तक हमें ऐसे सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करके पढ़ना होगा, एंड होप दैट वी विल मीट सून। सो कमिंग ऑन दी टॉपिक, आप लोग तो बोलते हैं एक ताले की एक नहीं 2-3 चाबियां होती है। कुछ लोग मास्टर होते हैं तो वो तो बिना लॉक के भी बिना की के भी लॉक खोल लेते हैं। सो दैट इज द डिफरेंट टॉपिक, बट कमिंग ऑन अवर टॉपिक, वन लॉक हैज इट्स स्पेसिफिक की। ओके, एक ताले की एक बहुत ही स्पेसिफिक चाबी होती है। वैसे ही एक एंटीजन जो रहता है उसे मारने वाला एक एंटीबॉडी स्पेसिफिक रहता है। समझ में आ रहा है आपको? ये जो एंटीबॉडी अभी तैयार हुआ है सर्कुलर टाइप का, सर्कुलर शेप का, ये सर्कुलर शेप वाला एंटीबॉडी सिर्फ इसी टाइप के एंटीजन को किल कर सकता है, या फिर ये जो ट्रायंगुलर शेप का एंटीबॉडी है ये सिर्फ इसी टाइप के एंटीजन को किल कर सकता है। गेटिंग इट? सो लाइक लॉक एंड की, एंटीजन, एंटीबॉडी, दे फिट इनटू ईच अदर। लॉक एंड की जैसे एंटीबॉडी एंटीजन एक दूसरे में फिट करते हैं एंड दे फॉर्म अ एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स, एंड व्हेन वी स्टडी दैट कॉम्प्लेक्स इट इज नोन एज द सेरोलॉजी। एंटीजन मीन्स इपिटोप, एंटीबॉडी पे रहता है पैराटोप। इपिटोप उसको एंटीजेनिक डिटर्मिनेंट्स भी बोल सकते हैं, जैसे कि हमने पैराटोप को एंटीजन बाइंडिंग साइट बोला है, पैराटोप को एंटीजन बाइंडिंग साइट बोला है, वैसे ये जो इपिटोप है, इपिटोप को हम बोल सकते हैं एंटीजेनिक डिटर्मिनेंट्स। ओके, सो वी कैन कॉल इट एज एंटीजेनिक डिटर्मिनेंट्स। सो लेट अस रिवाइज करो मेरे साथ में। सो वी आर स्टडिंग अ लेसन ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीजेस। आज का हमारा 6th लेक्चर है इस लेसन का, एंड इन दैट वी हैव स्टडीड द स्ट्रक्चर ऑफ एंटीबॉडी। सो रिवाइज with me, antibodies are structurally glycoproteins. Yes, they are also known as the immunoglobulins. Yes, okay. Now they are made up of how many polypeptide chain? 4 polypeptide chain. Out of the 4 polypeptide chain in the center, the 2 chain are known as the heavy chain, and on periphery the 2 chain are known as the light chain. Okay. In each chain, one terminus is known as the C terminus and another terminus is known as the N terminus. Okay, all the 4 chains are having half region as a variable region and half their region as the constant region. Okay, now variable region has which side? Variable region has antigen binding site. Again, variable region has antigen binding site. It is also known as the paratope. All the 4 chains are connected together with the help of which type of the bond? Yes, disulfide bond, and they form which type of the structure? Y-shaped structure. Okay, now the base of antibody is known as the stem and the upper portions are known as the arms.
arms and stem are connected with a point known as the hinge. Antibody can form a complex with 2 antigen at a time. एक बार में 2 एंटीजन के साथ एक कॉम्प्लेक्स बना सकती है, because 2 paratopes are there. That's why our antibodies are known as the bivalent. Some antibodies are trivalent or pentavalent as well, but that you will study in your higher classes. Okay, so antibodies can bind with 2 antigen at a time, so it is known as the bivalent type. Okay, so how it forms a complex with antigen? So हमने पढ़ा कि एंटीजन को प्रोसेस करके प्रेजेंट किया जाता है. So it is presented in the form of these receptor. Now you call it as epitope or also called it as एंटीजेनिक डिटर्मिनेंट. सो आप इसको क्या क्या नाम दे सकते हैं? एक तो आप बोल सकते हैं इसे इपिटोप, या फिर आप इसे बोल सकते हो एंटीजेनिक डिटर्मिनेंट्स. ओके, सो जैसा भी इस एंटीजेनिक डिटर्मिनेंट का शेप रहेगा, उस शेप के हिसाब से ये वाला जो अपर वेरिएबल रीजन है, ये वेरिएबल रीजन अपने आप को चेंज करेगा और वेरिएबल रीजन इस रिसेप्टर के अंदर या फिर इपिटोप में या फिर एंटीजेनिक डिटर्मिनेंट्स में अपने आप को फिट कर लेगा. So like lock and key, antibody antigen forms a complex, and when we study the complex it is known as the serology. And after forming complex, एक बार एंटीबॉडी एंटीजन ने कॉम्प्लेक्स बना लिया कि उसके बाद के 2 स्टेप आप जानते हो, ऑप्सोनाइजेशन एंड न्यूट्रलाइजेशन, एंड काम खत्म. किसका काम खत्म? ऑफ कोर्स एंटीजन का. सो इट इज ऑल फॉर टुडेज. अगेन घर पे लर्न करो, वॉच करो, रिवाइज करो. And yes, we will study tomorrow antigens on blood antigens, or you can call it as ABO blood grouping system. So कल हम blood antigen या फिर ABO blood grouping system के बारे में पढ़ेंगे. Till then